Today's ratio and proportion, and I hope you have learned all the terms related to ratio and proportion. So I am coming directly to the exercise. Come to the exercise 7.1. Exercise 7.1. First question. It is an alloy consists of 27 whole 1 by 2 kilogram of copper. Copper equal 27 whole 1 by 2 kilogram and tin 2 whole 3 by 4 kilogram. Find the ratio of weight of tin to the alloy. ठीक है, देखो क्या है, find the ratio of tin to the alloy. Then what is the total weight of the alloy? Because the ratio is asking tin upon alloy. ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। alloy tin और कह रहा है ना, find the ratio by weight of tin to the alloy. तो tin से alloy के weight का ratio पूछ रहा है. You know, weight of the tin is 2 whole 3 by 4 and total weight of the alloy is made of these two, copper and tin. So you will sum these two, 27 whole by 2 plus 2 whole 3 by 4. ठीक है. Now just simplify this one. 4 2 जा 8 3 11 by 4, 27 2 54 और 1 55 divided by 2 plus 4 2 जा 8 और 3 11 by 4. Now the LCM is 4 here. Note down students, क्योंकि उधर लिख नहीं सकते. Note down. Written. Now this can be simplified as 11 divided by 4 divided by, if you are taking LCM, so the denominator LCM of these two is 4, 2 2 ja 4. So 2 5 ja 10, 2 5 ja 10 or 11, 110 plus 11 divided by 4. So it is equal to 11 by 4 plus 10 or 10 20, 121 divided by 4. This is cancel out. 11 upon 121, ठीक है, और 11 जा 121, ठीक है. तो tin upon alloy is 1 ratio 11, so the ratio is 1 ratio 11. So simply you may say 1, क्योंकि 1 upon 121 आ रहा है, तो tin ratio alloy equal 1 ratio 11. This is your final answer. Clear? In the next graph, find the compounded ratio of. Find the compounded ratio of. Question number second. Question number second. Graph, find the compounded ratio of. First पहले easy लेते हैं, 2 ratio 3 and 4 ratio 9.
Who will tell me what is the compounded ratio of these two? 2 ratio 3 and 4 ratio 10. How much? 8 ratio 27. Good. क्योंकि A into B upon C into D, so compounded ratio equal 8 ratio 27. इसी का फोर्थ पार्ट लेते हैं, दे थर्ड पार्ट लेते हैं। A minus B ratio A plus B whole square ratio A square plus B square and A to the power 4 minus B to the power 4 ratio A square minus B square whole square। ठीक है, A minus B A plus B whole square ratio A square plus B square A to the power 4 minus B to the power 4 ratio A square minus B square whole square। So here there are three ratios are given and you have to find the compounded ratio. So just by using like this, A minus B into A plus B whole square into A to the power 4 minus B to the power 4। तो यहाँ पे आप लिखेंगे compounded ratio equal A minus B, इसका फर्स्ट टर्म A plus B whole square और इसका फर्स्ट टर्म A to the power 4 minus B to the power 4 divided by multiply of all the second term A plus B A square plus B square और ये टर्म आ जाएगा A square minus B square whole square। Now we have to just simplify it। So before to simplify, what will you do here? You will do factorization of this one। Okay, A to the power 4 minus B to the power 4 can be written as A square plus B square and A square minus B square by using square difference factorization। So the simple is A minus B and this is A plus B whole square and this can be written as A square minus B square A square plus B square। ठीक है, डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा A plus B A square plus B square A square minus B square whole square। अब देखो यहाँ से A square plus B square में से यहाँ से A plus A square B square एक कटेगा और एक बचेगा, क्योंकि दो एक स्क्वायर का टर्म है और एक सिंगल टर्म है। इसको यहाँ से रफ कर देते हैं। यहाँ से जो कटेंगे उसको आप पहले से A माइनस बी और A प्लस बी से A प्लस बी स्क्वायर में से प्लस बी कटेगा, यहाँ से सिर्फ A प्लस बी बचेगा। ठीक है ना, और A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में से देखो ये टर्म कंप्लीट यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और इसमें A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है तो इसको दो बार लिखेंगे। A स्क्वायर माइनस बी, एक कटेगा एक बचेगा, यानी नीचे आपको बच गया कितना, यहाँ से ये कट गया ना A माइनस बी प्लस बी कट, ये पूरा कट गया, यहाँ से ये आ जाएगा A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे A माइनस बी A प्लस बी, फिर ये फैक्टर करेंगे A minus B A plus B। So you can see this totaling cancel out, so the ratio is 1 ratio 1। The compounded ratio is
1:1 सब कैंसिल होकर के और आपका कंपाउंडेड रेशियो 1:1 मिल रहा है। किसी को कोई डाउट? किसी को डाउट? यस। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, सबका एक एक पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें कह रहा फाइंड द डुप्लीकेट रेशियो। जस्ट आई एम टेकिंग थर्ड का सेकेंड पार्ट ले रहे हैं, √5/7। टेल मी व्हाट इज द डुप्लीकेट रेशियो? यस, 5:9। डुप्लीकेट में स्क्वायर करते हैं और सब डुप्लीकेट में स्क्वायर रूट लेते हैं। तो डुप्लीकेट रेशियो इक्वल √5 होल स्क्वायर रेशियो 7 होल स्क्वायर, तो 5:49। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, और फोर्थ का मैं इसमें आपसे कौन सा ले लूं? थर्ड लेता हूं, ठीक है। कह रहा फाइंड द ट्रिप्लीकेट रेशियो। फाइंड द ट्रिप्लीकेट रेशियो 1 क्यूब रेशियो 2 क्यूब, और इसका पूछ रहा है ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट रेशियो, हाँ बोलो। 1:1। 8 नहीं होगा बेटा, देखो। हाँ, क्योंकि ये तो 8 ऑलरेडी दिया हुआ है। 2 का क्यूब करो तो 8 आएगा ना, और जब 8 का क्यूब करोगे तो 8 इंटू 8 इंटू 8 आएगा। मतलब इस पूरे का क्यूब करेंगे तो ये 3 टू 2 के पावर 3 टू द पावर, ट्रिप्लीकेट रेशियो में क्यूब करते हैं ना, तो क्यूब करने का मतलब 1, ये जो 1 का क्यूब है इसका क्यूब करेंगे, और ये 2 का क्यूब जो है इसका क्यूब करेंगे। ये आ जाएगा, ये तो 1 का पावर 9 आ जाएगा, और रेशियो 2 के पावर 9। या तो ऐसे लिख लो, 1 के पावर 9 का मतलब 1 ही होगा, ठीक है। तो 1 रेशियो, अब ये 2 के पावर 9 टोटल कितना आ जाएगा? 2 के पावर 9, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 64, और 64 कितना गया? कितना टाइम लगेगा? ओ 16, 16 का 256। हाँ, 256, दिस इज द आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर? क्योंकि कोई कंफ्यूजन तो नहीं, आंसर ही दे रहा है ना। 512 कैसे? अच्छा हाँ, ठीक है ठीक है, एक हमने छोड़ दिया 512, ठीक है नाम दिया, थैंक यू। क्योंकि हमने 8 टाइम तक ही किया था। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 का डबल कर लिया, 8 2 जा 512, थैंक यू। 512, 1 रेशियो 512 is the triplicate ratio। के बाद अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड लेते हैं, फाइंड द सब डुप्लीकेट रेशियो। 9a² रेशियो 49b², बोलो। सब डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट मीन्स हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे। व्हाट इज ए रेशियो 7b, है ना, क्योंकि स्क्वायर रूट लेंगे पूरे का
इसका स्क्वायर रूट 3 का 9 का 3, ए स्क्वायर का 8, 49 का 7 और बी स्क्वायर का सब डुप्लीकेट रेशियो। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड ही ले लेते हैं। थर्ड कह रहा है फाइंड सब डुप्लीकेट रेशियो 27 ए क्यूब रेशियो 64 बी क्यूब। बोलो। हाँ, 24 का इसका क्यूब रूट लेंगे सब ट्रिप्लिकेट में, तो सब ट्रिप्लिकेट रेशियो इक्वल 3a रेशियो 4b। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 4 का फर्स्ट लेते हैं 4 रेशियो 7। इट इज आस्किंग कि व्हाट इज द रेसिप्रोकल रेशियो। हाँ गुड। रेसिप्रोकल रेशियो इक्वल 7 रेशियो, और जैसे उसी का रिवर्स हो जाता है। ठीक है, तो जितने भी रेशियो है उसका रिवर्स हो जाएगा। चलो इसका बताओ, इसी में थर्ड दे रखा है 1/9 रेशियो 2। 1/9 रेशियो 2। व्हाट इज द रेसिप्रोकल रेशियो? 2:1/9 कितना आएगा? यस। हाँ, 2 इसका रेसिप्रोकल रेशियो निकालेंगे। रेसिप्रोकल रेशियो ये बन जाएगा कितना? 2:1/9, दैट इज 18 रेशियो। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बात है, टेस्ट के वजह से बच्चों की संख्या लगातार घटती जा रही है। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 8 आपसे बोल रहा है अरेंज द फॉलोइंग रेशियोज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है, देखो एक तो 2:3 बोल रहा है, दूसरा 17:21, और थर्ड 11:14 एंड 5:7। इतना आपको दे रखा है और कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करो। तो सीधा सीधा आपको पता है कि जब डिनोमिनेटर जब तक सेम नहीं होगा तब तक आप रेशियो जो है कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। ठीक है, यहां से देखो 2 बाई या तो सिंपली डिवाइड करके देख लो, वही तरीके अपने हैं। या तो 2 में 3 से 2 में डिवाइड कर लो, 17 से में 21 से डिवाइड कर लो, इसका डेसिमल में आएगा वैल्यू, अपने आप सब पता चल जाएगा। और दूसरा तरीका फ्रैक्शन इक्वल कर लो, 2/3 ये 17/21 है, 11/14 एंड 5/7। ये रेशियोज है। अब अगर इनका टोटल एलसीएम देखना चाह रहे हैं, अगर इनका टोटल एलसीएम, तो हाउ मच विल बी द एलसीएम ऑफ 3, 21, 14 एंड 7? बोलो, क्योंकि ये 14 नहीं रहता तो बहुत आसानी से सिंप्लीफाई कर लेते। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एलसीएम ऑफ 14, 3, 7? 3, 21, 14 और 7। अगर एलसीएम लेंगे 3 1 3, 21, 14 और 7, 7 2 1 2, 42। हम बस
42 ना, 126 LCM, LCM 126 कैसे बेटा? 321 49 7 का लोगे, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, ये 14 ऑटोमेटिक आ जाएगा। 7 यहाँ, फिर 7 से कैरी करोगे, 7 1 जा 7, 7 2 जा 41, 7 1 2 बचा, 3 7 जा 21 और 2 20 42 है ना। तो 42 एलसीएम। अब इसमें 42 में सबका मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाई 42। तो जाकर इसमें 42 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 42 का मल्टीप्लाई करेंगे कितने टाइम जाएगा? 14, 28 अपॉन 42, 14 टाइम जाएगा ना। देखो 3 4 जा 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 14 इंटू 2 24। यहाँ अगर मल्टीप्लाई कर दे तो 34 डिवाइडेड बाई 42, यहाँ मल्टीप्लाई करें 22 डिवाइडेड बाई 42, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 डिवाइडेड बाई 42। नहीं 30 वही हम भी देख रहे हैं। तो नाउ इट इज क्लियर। अब आप देख सकते हो कि विच रेशियो इज ग्रेटर। द ग्रेटेस्ट रेशियो इज दिस वन, आफ्टर ये। अच्छा देखो यहाँ भी अब सही है ना। दो, फर्स्ट वन इज First one is 34 upon 42. The second one is 33 upon 42. Third one is 30 upon 42 and fourth one is 28 upon 42. तो आपको लिखना है ना इन असेंडिंग ऑर्डर, करा ना इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे लोवेस्ट यही है, 2/3 लिख दो। इससे ग्रेटेस्ट 5/7। अच्छा इससे ग्रेटर ये 11/14 और इससे ग्रेटर 17/21। दिस इज द रेशियो इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो आवाज रब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, फर्स्ट पार्ट, a upon b it is given 2/3 और b upon c is given 4/5, c upon d is given 6/7। आपको फाइंड करना है a upon d इक्वल हाउ मच, a upon d इक्वल हाउ मच। तो ऐसे क्वेश्चन में बेटा करते क्या चलते जाते हैं, सबको इक्वल करते चलते हैं, ठीक है ना। जैसे देखो यहाँ a अपॉन b इक्वल 2/3 है और c अपॉन d इक्वल 6/7 है। तो अगर b की वैल्यू देखना है, a अपॉन b कितना है यहाँ पे 3, तो b 3 है ना, और यहाँ b कितना है 4 है। तो अगर इसमें 3 का इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दे और इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दे तो b इक्वल हो जाएगा। देखो अगर इसमें 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 और यहाँ 3 4 जा 8, 3 5 जा 50, 3 4 जा 12, 3 5 जा 50। तो अगर
नेक्स्ट स्टेप में देखें a अपॉन b इक्वल, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, और b अपॉन c इक्वल, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। ठीक है, अब b इक्वेट कर दिया। अब b के बाद c को देखो, c अपॉन d, बी अपॉन सी देखो, बी अपॉन सी कितना है 4 अपॉन 5, और इसमें सी अपॉन डी कितना है 6 अपॉन 7। तो इसमें 6 5 है, सी 5 है, और इसमें 6 सी कितना है 6 है। तो अगर इसमें 5 का 6 का मल्टीप्लाई करें और इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दें तो सी इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इसको कंटिन्यूटी में बना के चलना है। ठीक है, बी अपॉन सी 12 अपॉन 5, नहीं, सी 12 है ना, सी अपॉन डी, और सी अपॉन डी यहाँ पे, ये सी 12 आ गया, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें अगर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 6 जा 12 और 2 7 जा 14। अब आप देख सकते हैं बी सब में इक्वल हो गया और सी सब में इक्वल हो गया, तो ए की वैल्यू कितना आ गया, द रेशियो ऑफ ए रेशियो डी इज, ए की वैल्यू है 8 और डी की वैल्यू है 14, तो 2 4 जा 8, 2 7 जा 14। बात समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? बोलो। देखो पहले बी बी 2 है और यहाँ बी 3 है, यहाँ पे 4 है, डिनोमिनेटर चेक, समटाइम योर वीडियो गेट्स फास्ट। अच्छा अच्छा, ये भी प्रॉब्लम हो रही है। अनामिका, हैव यू एनी प्रॉब्लम? अनामिका, ओके। आर्यन, क्वेश्चन क्लियर है यार? मुझसे कभी कभी आपका मैसेज दिखता है, कभी नहीं दिखता है, इसलिए अनम्यूट करके बोल दिया करो आप लोग जब आपसे पूछे तो। क्वेश्चन क्लियर है या अभी भी कुछ पूछना है इसमें, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपको। क्या होगा फिर से? अच्छा, पहले आंसर चेक कर लो फिर देखते हैं। एक बार आंसर चेक कर लो, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 का, ये कौन सा था, 9 का ए था, 7.1, 7.1 कितना, एक मिनट, एक मिनट, 9 का 16/35 है, 16/35, ऐसे कैसे? एक मिनट बेटा रुक जाओ, चलो ठीक करते हैं। कहाँ पे छूटा है? ए अपॉन बी 2/3 है, ए अपॉन बी को हमने लिखा 8/12, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। बी अपॉन सी में 4/5 है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, सी अपॉन डी 15, डी 7 है,
C12 है। तो कंफ्यूजन कर दिए। देखो बेटा एक बार फिर से करते हैं। A upon B 2 upon 3, B upon C 4 upon 5, C upon D, C upon D 6 upon 7। ये है ना, ठीक तो है। अब इसमें सीधा सीधा B C इक्वेट करते चलते। A upon B 3 4 B यहाँ से 14 आ रहा है। हाँ यहाँ मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 5 का, ये 5 6 जा 30, 5 से हो जाए 35, और यहाँ मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 6 का, तो 6 को हो जाए 24, 5 6 जा 30। तो फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे है ना 8 का, ऐसे ये मल्टीप्लाई से ये हो जाएगा 16 अपॉन 24, और B अपॉन C आ जाएगा 24 अपॉन 30, और C अपॉन D आ जाएगा 30 अपॉन 35। अब आ गया A अपॉन D कितना आ गया 16 अपॉन 35, ये आंसर। ठीक है, ऐसे ही मल्टीप्लाई कर लो A अपॉन B में 8, क्योंकि इसको सबको इक्वल दिखाना है। 8 3 जा 24, ये 24, ठीक है। D और C 5 6 जा 30, 5 6 जा 30, हर जगह आपको सेम वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, नोट डाउन। अब सही है, कोई दिक्कत नहीं। C अपॉन D में 5 5 का, B अपॉन C में 6 6 का, और A अपॉन B में 8 8 का मल्टीप्लाई कर लेना, आपको A 16 और D 35 मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।